Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. I hope I'm audible. Today, on behalf of the AMU Economics Student Club, I, Nawal Fatma, a third year economics student, warmly welcomes you all to today's webinar, Your Gateway to Azim Premji University. This is indeed a special session where we get to hear directly from our seniors who are currently pursuing their masters at Azim Premji University. They'll be guiding us on the entrance pathway for Azim Premji University's flagship programs. We are excited to have you all here for this enriching session where not only we will explore academic opportunities but also understand how these courses can shape meaningful career path, especially through Azim Premji University scholarship schemes. Now, I would like to share that we are really honored to have with us today two very special guests tonight who are not only excelling at Azim Premji University but also have been valuable contributors but also have been valuable contributors to AMU Economics Student Club. We are delighted to welcome him back to guide us today. Our second speaker is Ms. Kashifa Irfan, currently pursuing her second year of MA in Development at Azim Premji University and also a former member of AMU Economics Student Club. She has been an active participant in the club's journey and continues to inspire us with her academic pursuits. Both of them have walked the same path we are on today, and their insights will surely help us envision our own journeys ahead. Without further delay, let us begin. I would now like to warmly invite Mr. Umar Saeed to share his insight with us. Over to you, Mr. Umar. Thank you, Noel, for such a warm welcome. Uh, the best part is that you mentioned that we are seniors, so I want this session to be interactive, and I don't want to like I am presenting, everyone is listening, no one is speaking, no one is asking anything. I don't want that kind of session. So you can ask questions in the midway whenever comes to your mind, and you can speak हिंदी. मैं भी हिंदी बोलूँगा तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंग्रेज़ी में बात होगी, हम लोग हिंदी उर्दू सब का इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा जिसको जिस तरह से भी बात रखनी है, चैट के थ्रू, वॉइस मैसेज या वीडियो ऑन करके वीडियो ऑफ करके, जैसे भी करना है वो बिल्कुल आराम से कर सकता है। हम बस जस्ट सीनियर हैं, ऐसे सीनियर जैसे एमयू में आपको ढाबे पे मिल जाते हैं बहुत सारे लोग, और उसी तरह बिल्कुल कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। मैं तो सारिम से बोल रहा था कि ये पोस्टर वोस्टर बनाने कोई काम नहीं है, जब बुलाओगे तो आ जाएंगे, क्योंकि क्लब मेरा ही है, हम भी पार्ट हैं क्लब के, तो इसमें इतना कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर सारिम ने कहा नहीं भाई ऐसे है, फ़ोटो भेजिए आप। मैं कहा ठीक है भाई, मैं भेजता हूँ आपको फ़ोटो वगैरह। तो बिल्कुल हम बातचीत करेंगे, ऐसा सेशन ऐसा रहेगा कि बातचीत करेंगे, हम लोग बैठे हैं ऑनलाइन और बातचीत हो रही है, ठीक। So I'm going to present my screen. Walaikum Assalam. Coordinator, ma'am, please take the screen of our speaker, please, so that we can see the screen clearly. Sorry, The what? screen is visible. Hello. Yes, Umar, it's visible. So today's session, as you know, your gateway to Azim Premji University. Azim Premji University, established in 2010, private university, 2 campus, Bhopal, and quite good university for research and for social sector job. Azim if you are interested in research and if you are interested in social sector, you will know the Azim Premji University. If you don't know, you should know. Then we have programs: MA, Masters in Economics, MA in Development, MA Education, MSc Climate Change and Sustainability, Masters of Public Policy, Executive MBA Development. So these courses are being offered by Azim Premji University in both campus,
Bhopal and Bangalore. This is the MA Economics. You can visit website. You can see all these details. 2-year course, 44 credit. These are general information which you can see from the website. So I'll explain you each part here. Like in the first semester, you will be you will be taught microeconomic theory and application first, and macroeconomic theory and application first. In the second semester, microeconomic application and theory second you will be taught. In the course like political economy, you will be taught Marxian theories and other political caste theories. In statistical method, you will be taught statistics with R. So initially, when I was in AMU, I was not able to write a single code in R. When I came here, then with a lot of assignments, I got to know how to do R with the help of ChatGPT. Then applied econometrics with Stata. Like you will learn here in these courses, you will learn the most updated things. You will feel like I'm learning new software. You will learn statistics with R. You will visualize normal curve. You visualize many things, and with real world data like PLFS data. I don't know आप लोग जानते हैं कि नहीं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का माइक्रो साइट होता है, उस पर डेटा सेट्स होते हैं अलग अलग तरह के, और उन सारे डेटा सेट्स पे काम किया जाता है और उनकी एनालिसिस होती है कि इंडिया में जो वर्किंग कंडीशन है या फर्म ओनरशिप कंडीशन है या बहुत सारी चीज़ें हैं कि इंडस्ट्रीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेबर का क्या कंडीशन है, इन सब पे डेटा अवेलेबल होता है। और आप उस डेटा को ये जो सॉफ्टवेयर्स हैं आर, स्टेटा, पाइथन, इन सब के थ्रू आप विजुअलाइज एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में सिखाई जाती है। और उसके अलावा माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच पढ़ाया जाएगा। आप जो भी पढ़ रहे हैं वो न्यू क्लासिकल अप्रोच है, आपको हेटेरोडॉक्स अप्रोच पढ़ाया जाएगा। वो आप जब एडमिशन होगा आप समझेंगे कि हेटेरोडॉक्स अप्रोच क्या होता है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी में आपको सोसाइटी की हाउ सोसाइटी एंड इकोनॉमिक्स आर रिलेटेड, पॉलिटिकल इकोनॉमी कोर्स आप करेंगे। फिर उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपको फील्ड पर भेजा जाएगा। फील्ड में आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि कैसे क्लास और कास्ट प्ले कर रहे हैं रोल, कैसे लेबर मोबिलिटी प्ले कर रही है रोल। आपको ये सारी ऑब्जर्वेशन करनी होगी फील्ड पे। आप एक प्राइमरी रिसर्चर की तरह जाएंगे कि आपको एक फील्ड पर भेजा जाएगा, आप वहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि वहाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या जेंडर डोमिनेंस है, क्या रिलीजन डोमिनेंस है, क्या कास्ट डोमिनेंस है। ये सब चीज़ें आपको आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद सीखेंगे। उसके अलावा है इकोनोमेट्रिक्स ऑफ इम्पैक्ट इवोल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और बहुत मतलब यंग कोर्स है। इम्पैक्ट इवोल्यूशन जितने भी आजकल टॉप रिसर्च हो रही है इकोनॉमिक्स में, जैसे जो भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन है या बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, सब इम्पैक्ट इवोल्यूशन कर रहे हैं। आप लोग नाम सुने होंगे RCT का, तो RCT वगैरह वो सब इसी में आता है। JPAL का आप लोग नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने तो आप सर्च करिए जो मैं बता रहा हूँ। और किसी को अगर जानना हो ज़्यादा तो फिर बाद में वो पूछ भी सकता है। तो इम्पैक्ट इवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है और बहुत यूज़फुल कोर्स है जॉब के लिए। तो ये भी एक कोर्स पढ़ाया जाता है। फिर कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक्स से कोर्स है। कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि आप कैसे इकोनॉमिक्स को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो उसमें आपको पोस्टर बनाना सिखाया जाएगा, आपको इन्फोग्राफिक्स बनानी सिखाई जाएगी, उसमें आपको कैसे लिखते हैं ये सिखाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। लेटेक को कैसे यूज़ करना है। लेटेक एक राइटिंग सॉफ्टवेयर है और उस पर हम लोग एकेडमिक राइटिंग लिखते हैं। वर्ड की तरह है लेकिन वर्ड से एडवांस है। अब लोग उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप लोग शायद जानते हो। तो लेटेक वगैरह सिखाया जाता है। तो जितनी भी न्यू चीज़ें इकोनॉमिक्स में चल रही हैं, जितने भी नए सॉफ्टवेयर्स, जितनी भी नई थ्योरीज, वो सब आपको यहाँ पर सिखाई जाएगी। आपका एक खुद का स्टैंड बनाया जाएगा कि कैसे आप खुद अपने आप से समझ सकते हैं कि कैसे इकोनॉमिक्स काम करती है। ये सारी चीज़ें सोसाइटी में भी और उसके अलावा ओवरऑल कैसे समझ सकते हैं। फिर उसके बाद पॉपुलर इलेक्टिव्स हैं। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट यहाँ पे पढ़ाते हैं वो एलेक्स एम थॉमस सर, और बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं वो। हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के पूरे वर्ल्ड में 8-10 प्रोफेसर होंगे तो उनमें उनका भी नाम है।
एलेक्सन थॉमस सर का, फिर मनी इन बैंकिंग कोर्स है, एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है। अभी मैं प्रोफेसर्स का भी आपको दिखाऊंगा कि कैसे प्रोफेसर्स हैं यहाँ, क्या कोर्सेज हैं। तो कोर्स यहाँ जो भी है वो बहुत एडवांस और बहुत जो रियल वर्ल्ड में कोर्सेज चल रहे हैं, जो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाए जा रहे हैं, वो सारे कोर्सेज हैं, ना कि वो कोर्सेज जो आपको नेट क्वालिफाई करा दें। हो सकता है ये कोर्सेज नेट क्वालिफाई ना करा पाएँ आपका, लेकिन आपको एक अच्छा एनालिस्ट और रिसर्चर बना देंगे, जिससे कि आप जॉब ले सकें एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद। अब एमए डेवलपमेंट का है, ये काशिफा बताएंगी। काशिफा प्लीज। उमर, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे, पहले आप लिंक्डइन प्रोफाइल्स दिखा दीजिए कुछ प्रोफेसर्स की। ओके ओके, श्योर। ये अर्जुन जयदेव है। जयदेव फैकल्टी है इकोनॉमिक्स के अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। ये आप देखिए 40। आप इनकी आप जाएंगे और वेबसाइट्स में जाएंगे डिफरेंट, और वहाँ पे अर्जुन जयदेव का आपको नाम देता जाएगा। ये अर्जुन जयदेव हैं, इनका आर्टिकल EPW, ऑक्सफैम इंडिया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स एमहर्ट, हर मतलब काफ़ी प्रोमिनेंट नेम है। आप सर्च करिएगा बाद में जब एक्सप्लोर करिएगा इनकी प्रोफाइल। काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के, और मतलब जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अर्जुन को मानती हैं। ये अमित बचोले हैं, इनके अंडर मैं थीसिस लिख रहा हूँ, मास्टर्स थीसिस। ये काफ़ी सीनियर प्रोफेसर हैं, हेड हैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट हर साल एक वो बुकलेट इशू करता है, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आते हैं। हेलो उमर, आई एम ऑडिबल? हाँ, या यू आर ऑडिबल, but you are having network Me? problem. Yes, please check once. am I audible? Yes, yes, now you are. ये वीडियो ऑन नहीं करते हैं, बिना वीडियो ऑन की बात करते हैं। But please share the screen. हाँ, तो मैं अमित साहब के बारे में बता रहा था। तो अमित हेड हैं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के। सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का ही ऑर्गेनाइजेशन है, जो हर साल स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया पब्लिश करता है। स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया इतना रिलेवेंट है कि यूपीएससी में भी स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दृष्टि या और भी जो यूनिवर्सिटी ये हैं कोचिंग सेंटर्स हैं, ये लोग स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया को समराइज करके यूपीएससी के स्टूडेंट्स को शेयर करते हैं। फिर until 2016 he was professor at University of Massachusetts Boston. Then he has like talks and interview. If I go here, see NDTV, Arjun Jaydev,
Again, Azim Premji University Professor, Amit Basole, Azim Premji University Professor, Rajendran Narayan, Assistant Professor, Azim Premji University. Then Understanding Addressing India's, then with Ravish Kumar, Amit is here. Then with Quint, Amit is here. Rethinking Economics, Amit is there. So, like, these professors are very famous in their domain. NDTV, Amit Basole. तो ये लोग बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपनी फील्ड में और बहुत फेमस हैं अपनी फील्ड में। मेरे कुछ दोस्तों ने इंटर्नशिप की और वो बता रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐसे पूछते थे कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से हो, अच्छा अमित की यूनिवर्सिटी से हो, मतलब ऐसे लोग जानते हैं। अगर आप अब इनका अगर रिकमेंडेशन, अगर ये आपको अपना रिकमेंडेशन दे दें तो आपकी जॉब लगना कितना आसान हो सकता है, मैं इस सेंस में बता रहा हूँ। फिर उसके बाद ये हैं चिन्मय कुमार, ये कॉजल इन्फ्रेंस पढ़ाते हैं और ये APU के RCT के प्रोफेसर हैं और इन्होंने काफ़ी रिसर्च किया है कॉजल इन्फ्रेंस पे। जेपाल वगैरह में इनका काफ़ी नाम है। जेपाल में अगर चिन्मय का रिकमेंडेशन हो जाए तो डायरेक्ट आपको जॉब मिल सकती है। और कुछ इनकी प्रोफाइल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप खुद विजिट करिएगा, मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कुछ चीज़ें आपको। ये रोज़ा अब्राहम है, इनका लेबर इकोनॉमिक्स पे काम है, इन्होंने बुक लिख रखी है और उसके अलावा इनका डेटा PLFS और डेटा पे बहुत काम है और इनका बहुत सारे पेपर EPW पे बहुत सारे पेपर पब्लिश हैं। इनका कुछ पेपर EPW ने पूरा वो समराइज करके बहुत अच्छा कुछ बनाया वगैरह। हिंदुस्तान टाइम्स में, EPW में, इंडिया स्पेंड में, हर जगह आपको आर्टिकल, साइंस डायरेक्ट आपको आर्टिकल मिल जाएगा, आपको इनके रिसोर्सेज मिल जाएंगे। फिर उसके बाद ये एलेक्स सर की मैं बात कर रहा था। एलेक्स सर ने किताब लिख रखी है 2, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट के, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। इनके अंडर जो भी थीसिस लिखता है उसको सर किसी फॉरेन के यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन के लिए भेजते हैं। लास्ट ईयर हमारे सीनियर थे नसीफ भाई, उन्हें भेजा था जापान। तो ये देखिए, आप इनका इंटरव्यू देखिए यूट्यूब पर, रीथिंकिंग इकोनॉमिक्स, यंग स्कॉलर इनिशिएटिव्स। तो जितने भी प्रोफेसर हैं सब अपनी फील्ड में मतलब बहुत मास्टर हैं, बहुत काबिल लोग हैं। ये जीको दास गुप्ता, इनका आप आर्टिकल देखिए यहाँ पर अमित के साथ। फिर उसके अलावा EPW में फिर ये द हिंदू में आर्टिकल, फिर उसके बाद पोस्ट केनेशियन इकोनॉमिक सोसाइटी, इंडियन एक्सप्रेस। मतलब आप किसी भी APU के प्रोफेसर का नाम टाइप करिए, आपको उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उनके कंट्रीब्यूशन, बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी। ये काशिफा, इसको तुम ही एक्सप्लेन करना। यस, थैंक यू उमर। सो फर्स्टली मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगी। अगर हम इन लोगों का नाम ले रहे हैं तो हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ का कल्चर ऐसा है कि हम प्रोफेसर्स का नाम लेते हैं, तो प्लीज़ डोंट माइंड। सेकेंडली, ये लोग ऐसा नहीं है कि प्रोफेसर बनने के बाद इनका काम खत्म हो गया है। दे आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग देयर वर्क इन मल्टीपल फील्ड्स। सो आफ्टर एक्सप्लेनिंग व्हाट इज MA डेवलपमेंट, आई विल someone, yes please, you can ask question. Speaker sir, you have mentioned some of the applications name. Can you please repeat those thing and their work? Application name what? हाँ, like retake और वगैरह कुछ पहले आपने कुछ बोला था, ऐसे कुछ that will be taught. भाई क्या आप ऐसे क्या बोला था? सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ बोला था आपने। अच्छा, हाँ, R, स्टेटा, पाइथन, ये 3 डोमिनेंट सॉफ्टवेयर्स हैं इकोनॉमिक्स की फील्ड में। तो ये तीनों आपको कोर्सेज में पढ़ाए जाते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको R पढ़ाया जाएगा, स्टेटा विद स्टैटिस्टिक्स विद R, फिर उसके बाद इकोनोमेट्रिक्स विद स्टेटा, फिर उसके बाद आप एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर अपने उसमें लेंगे ऑप्शनल में, तो आपको फिर एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स प्लस पाइथन। तो ये तीनों आपको इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं और आप सीख लेंगे। मतलब इतना आपको सिखाया जाएगा जो इंडिया के डेटा सेट्स हैं, इंडिया के भी और वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह के भी जो भी डेटा सेट्स हैं, उस पर आपको काम कराया जाता है। तो आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सॉफ्टवेयर यूज़ करने की।
उसके अलावा आपने एक और बोला था, राइटिंग के लिए कुछ ऐसा बोला था आपने। latex. LaTeX. Okay, thank you. Thank you, Umar. So I will be talking about MA development program. Talking about the program structure, so it includes 10 mandatory courses, 3 field practice components, and 7 electives. So electives you can choose by yourself. There are multiple options. Talking about field components, so in 3 semesters we have to go 3 times to the field. First for 15 days, then for 6 weeks, and then for 12 weeks. So it is very important because this will help us to know the ground realities, and it gives the opportunity for us to do internship in top organizations like Aga Khan, Antara, Azad, etc. Core course that includes economy and development, the Indian experience. So this course help us to understand the development trajectory of India, what challenges we were facing, and how did we take the decision on what basis, and how good they were or not. So there is a very open space to criticize and see with different lenses. Talking about environmental perspective for development, it is the core course, because now as we are globally trying to achieve SDG goals, so environment is one such concern. So it's not just a environmental issue, it's also a developmental issue, it's also an economic issues, and it's very relevant in the field of development, especially in developing countries. So, and sociology of modern India, we know India constitutes of diversified groups, caste, depending on caste, class, religion, everything. So it's very crucial to know the social status of India in different states. That's why for development, that's why it's one of the such course and very important. Similarly, theories and histories of development help us to understand what history has been there before British or during Britishers' time, and how these change eventually. State and governance in India talks about how democratic in real terms the country is, and how we can express ourselves through constitution, through using our state and governance perspective. Social intervention is like when you understand these core courses with the lens of economics, sociology, environment, and you also understand the history. Now it's like present time, how you intervene with the society, how you can bring positive change. That's why social interventions come into picture, where you need to be very organized, where you need to understand you can't just go somewhere and just have your idea and put into place. You need to understand the society there, the environment there, people there, community there. So it's very important social intervention course. And when you are doing social intervention, before that you need to have really good comprehensive research on this or any other field. So that's why one crucial core course is research methods for development practices. And a very new core course that our first batch is there. It is introduced in our batch. Prior to that, it was not there. Project management for development intervention. So it's like a part of MBA course, a very little component where we understand how we try to plan, implement, and evaluate and monitor our interventions and how things are going. Talking about elective courses, there are so many elective courses. You can see that on the APU official website. I will be just talking about the unique features. So there is extensive field practice. First, when you come in first semester, you need to go to CLR. It's like you just need to go to field for observation. You don't have to do nothing. For 15 days, they will send you in groups to different states across India. They will by their choice, and you have to just observe, see how organization is working, see how if organization is saying something and they have morals upon that, are they working on that or are they going against it. So you just have to be very critical, analytic. You can just observe and see what is happening. If you are from north and you are going to southern states, you just need to compare that how far behind north is or how far ahead south is. So, and after second semester, you need to go for the internship for about 45-46 days,
where you will work with the organization. Now you just not to be critical or observe, you know, not to be just observer, but you have to work and see how are you comfortable with that. Are you sure that you want to go to this development sector far ahead? So it's a very talking about my experience, it gives you a reality check that whatever you see in internet or web, even for organization, they are not working like that. How far behind they are lagging, how data is getting manipulated. You need to be very, very critical. You need to understand that whatever they are doing, saying, they are not doing by their rights, because you have the lens of when you before 2 semester, in 2 semester you are done with your core course. Now you have every lens to see whether economically they are benefiting the community, are they doing environmental justice or not, are they understanding the community perspective, whether they are religious, non-religious, are they taking into consideration, or they are just manipulating them. So you get to understand many things. And after your completion of 3rd semester, you have to do the individual field. You will choose the location by your choice. You will go there. You can do a small intervention for 2 months, or you just need to have very ground level study. It's like a mini thesis. So for this, you have to do a rigorous work, which currently I am doing because it's my 3rd semester, and after the completion of 3rd semester, I need to go to my field. So it's a very, it gives you a normative compass to just question what we are understanding development is actually development is or not. So whatever, talking about my experience, now I know what actual definition of development is, not just what I have read in books. So it includes many stakeholder engagement focus. We need to see governance, we need to see state, we need to see NGOs, researches, everything. So it's very comprehensive and very well designed course. Omar, can you change the slide, please? Now I will talk about MA in education. I will particularly focus on this because it's like a very particular special course of APU that have its roots in education, which APF, Azim Premji Foundation, basically focuses on. So this program is very unique because if we see in Indian landscape, Azim Premji Foundation has this government engagement with schools. No particular program in India till now even is doing such things, that they let students engage with the government schools. Even they collaborate with government school, and for the 1st semester you need to go every week with in government school, interact, teach students and everything in Bangalore. So program structure is almost same like MA development, MA economics. You have bachelor's degree in any discipline with 60%. There are 2 options that you can get enrolled. You can get enrolled with CUT PG score, or APU have especially their exam, you can give that also. Interview you have to give in both the cases. Core courses we are having, you can see philosophy of education, sociology of education, child development and learning. See, there you can see that they try to make us understand education or even development from different lenses, like what is the philosophy education, why we need education, on what basis we give education and why is it important. Sociology of education, like depends upon the society. It varies in different societies how we take education as a perspective, just to not having jobs or money, but as a part of our individual development. So you can see different core courses, field research methods, teacher professional development. It's a very professional and comprehensive course. Umar, can you move ahead with the slides? So there are 5 specialization that you can do in MA education. And education is a very vast subject, and you have to be very you have to choose your specialization. There are 5 specialization in APU. Early childhood education, those who are very passionate about foundational learning of child.
learning education that includes multilingual learning. Then it's mathematical education, science education, and then social science education that almost integrate all parts of across different disciplines. So education, also talking about what makes it unique in APU, it's like extensive field work. You have to go in first semester, you have to go weekly practicum. On every Wednesday, students of education go in different government schools in Bangalore and interact with teachers, students. And in second semester also they do that. In third semester they have to go to 12-week internship for internship at Azim Premji institutions across different states. Like some of the students were going to Gujarat, some of were going to tribal areas of Chhattisgarh, some of are going to Karnataka also. So this is the second field work. They are also having third field work. It is also very intensive. You have to do a little kind of thesis here, internship cum thesis you can say, because they are having direct partnership with Azim Premji Foundation, so they send their students there. So it basically it makes you ready to question the government also, like how is education system is going in the right way, what needs to be included and why, and what need not to be included. So it empowers you to have a advocacy level kind of intellectual. Talking about career opportunities, so there are in education sector there is no limit for career opportunities. You can go for curriculum designer and development, teacher, educator and trainer, education program manager, and you can see on the slide there are many things you can opt for. And apart from this, there are also things. Best part is that the placement of APU is very good. These organizations comes and you can opt according to this. It provides you the opportunity to have your career directed in a good way, starting from the starting. Umar, can you change the slide, please? In MA education, you don't need to have any specific criteria of teaching or background in education. You just need to have a graduate degree, and then you can apply for even development also. But for economics, you need to be graduate in economics. Umar, please talk about MSc climate change. Over to you. This course is launched this year, MSc in climate change. This course is especially for those students who are pursuing bachelor's in sciences. So this course is very good course they have launched, and not only in India, abroad this course has lots of scope. If a person is doing MSc climate change and applying for abroad PhD or job, I think using after reading these courses they'll definitely get a place. तो इसमें 1 साल का कोर्स वर्क है, ये आप देखिए, और फिर उसके बाद 2 साल का थीसिस है, तो उसमें आप थीसिस भी लिखेंगे, आपको समझ में आएगा कि आपको रिसर्च करनी चाहिए या जॉब में जाना चाहिए। थीसिस में समझ में आ जाता है कि आपका किस में क्या इंटरेस्ट है। फिर क्लाइमेट जियोस्पैटियल एनालिसिस, ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी। सस्टेनेबिलिटी मैट्रिसेस, लाइफ साइकिल असेसमेंट, सिस्टम ऑफ थिंकिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी। फिर इंटर्नशिप टॉप ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिसर्च अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप होगी। और क्लाइमेट चेंज का जो डिपार्टमेंट है एमयू का, वो काफ़ी एपीयू का काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। इसी साल ये कोर्स लॉन्च हुआ है और अच्छा कोर्स है फॉर दोज हु आर परस्यूइंग ज्योग्राफी, फॉर दोज हु आर परस्यूइंग बैचलर्स इन साइंसेस। एडमिशन टेस्ट उसमें आपके पास ऑप्शन भी है कि आप 2 years का परस्यू करें या 1 year का, बिकॉज 4 year ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री की वजह से। सो इट्स अ वेरी न्यू एंड very well organized course also. Talking about, yes, Umar, to you. So एडमिशन प्रोसेस के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा और उसकी 500 फीस है। और एंट्रेंस टेस्ट दो तरह से होंगे, और एंट्रेंस अगर आप
मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स में अगर आप CUT PG इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो वो मोर देन इनफ होगी। और उसके अलावा आपको 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। पहला ध्यान इस पे देना होगा कि आपको ऐसे लिखना होगा एग्ज़ाम में। तो ऐसे के लिए आपको जो भी करंट इकोनॉमिक सिचुएशन जो चल रही है, जैसे अभी के लिए हम देखें तो अमेरिका का टैरिफ वॉर हो गया, इस पे से आ सकता है कि हाउ अमेरिकन टैरिफ अफेक्टिंग इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें आप अपना आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं कि ये बैडली इफेक्ट करेगा, पॉजिटिवली भी इफेक्ट करेगा। पॉजिटिवली ऐसे इफेक्ट करेगा कि हम अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे, उससे हमारा खुद का प्रमोशन होगा, हमारा खुद का प्रोडक्शन होगा। और निगेटिवली ऐसे होगा कि हमारी प्राइसेस महंगी हो जाएंगी, प्रोडक्शन जो अमेरिका में प्रोडक्ट खरीदे जाते थे वो प्रोडक्शन बंद हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। तो और भी जो भी इंडियन इकोनॉमी में जो चीज़ें हो रही हैं, और इंडियन इकोनॉमी के अलावा पॉलिसी में जैसे कोई भी पॉलिसी होती है, गवर्नमेंट फ्री बीज देती है, गवर्नमेंट फ्री राइड देती है बसेस वुमेन को, उन सब चीज़ों पे भी हाउ इकोनॉमिक्स कैसे इकोनॉमिक्स उसको डील कर रही है, कैसे वो पॉजिटिव है स्टेट की इकोनॉमी के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, कैसे वो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ों पे ऐसे भी आता है। और इकोनॉमिक्स में कोर इकोनॉमिक्स आती है, मतलब इकोनॉमिक्स का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और ऐसे आएगा और इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आप अगर CUT PG का ठीक से पढ़े हुए हैं और उसके अलावा ऐसे वगैरह पे आपका थोड़ा कमांड है, मतलब आप तो जानते हैं ओवरऑल कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कैसे जो अपर क्लास लोग हैं या अपर कास्ट लोग हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, जो गरीब लोग हैं, लोअर कास्ट हैं, उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है, आपको अगर इन सब बातों पे आपसे पूछा जाए तो आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर पाएँ। ये सारी चीज़ें हैं, ये हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। आप ये PPT शेयर भी कर देंगे, आप ये सब पढ़ लिए होंगे तब तक मैं बात कर रहा हूँ। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव आंसर, फिर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, फिर ये सारी चीज़ें हैं। हाँ, एडिंग टू दैट व्हाट उमर सेज, वो चाहते हैं कि आप क्रिटिकल रहें, आप जो चीज़ जैसे है उसको एक्सेप्ट ना करें, आप क्वेश्चन करें, आप पूछें कि अगर क्लास डिफरेंस है तो क्यों है, किन वजूहात से है, और कैसे कैसे उसको हम देख रहे हैं कि क्लास डिफरेंस है। तो फिर टॉकिंग अबाउट अगर डेवलपमेंट का ले लें कि अगर कहीं पर कुछ लेक है तो लेक को वो लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, इकोनॉमिक वे में यूज़ कर रहे हैं या सस्टेनिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो दे जस्ट वांट यू टू बी क्रिटिकल इन योर थिंकिंग। बाकी आप कैसे भी सोचिए, गलत सही उनको नहीं समझना होता, उनको ये समझना होता है कि वाकई में आप क्वेश्चन करने वाली मेंटेलिटी रखते हैं चीज़ों की। फिर आते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट। सो नीड बेस्ड फाइनेंशियल सपोर्ट इज अवेलेबल, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसका टिप ये दूंगी, अगर आप APU में आने की सोच रहे हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंटेशंस लाइक फादर का इनकम सर्टिफिकेट, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस को अभी से रेडी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं नीड बेस्ड असेसमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। सिमिलरली मेरिट स्कॉलरशिप्स भी हैं। MBA इनका नया प्रोग्राम है जो 2026 में इनका फर्स्ट बैच आएगा। तो ये MBA स्पेसिफिकली वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सोशल या डेवलपमेंट फील्ड में, तो उनके लिए 60% मैक्सिमम ट्यूशन वेवर है। आप अपने सीनियर्स को जो वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी उनके लिए उनको बता सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है और इंडिया की और शायद वर्ल्ड की टॉप फैकल्टीज़ इस प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रही हैं और वर्क कर रही हैं। यस फैजान, प्लीज़ यू कैन आस्क क्वेश्चन। Assalamu alaikum. Actually, ma'am, I'm saying that is there any criteria to fully funded scholarship to go to the APU University? यस फैजान, क्राइटेरिया है फुल्ली फंडेड का। आप वो डायरेक्ट वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। मैं थोड़ा छोटा सा डिटेल में बता देती हूँ कि 2.5 लाख समथिंग टू 3.5 लाख से अगर आपके फादर की इनकम कम है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। फिर 4.5 लाख, शायद मैं गलत हूँ बट अराउंड इट 4 to 5 अगर है तो 50%, मोर देन 8 लाख है तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। सो आप उसके हिसाब से आप देख सकते हैं APU वेबसाइट पे सारी इन्फॉर्मेशन दी है, आप एक बार विजिट करें और उस पर देखें कि क्या क्राइटेरिया है और
अपने डॉक्यूमेंटेशन रेडी रखें, आपका मतलब पेरेंट्स का बैंक अकाउंट वगैरह, क्योंकि ये सारी डिटेल्स लगती हैं। तो यही सब है, मतलब जो वेबसाइट पर लिखा है, अगर आप उस क्राइटेरिया में फुलफिल आ रहे हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। ओके, जज़ाकल्लाहु खैरा। उमर स्लाइड चेंज करना। इनमें इस पे थोड़ा और फोकस करना चाहूँगी। जैसे उमर ने बताया था फैकल्टी के बारे में, मैं आपको कुछ डेवलपमेंट फैकल्टी के बारे में बताना चाहूँगी। उमर प्लीज ओपन योर लिंक्डइन। Umar, am I audible? Okay. Meanwhile, Umar आता है जब तक I will tell about faculty के okay. Yes, तो he is आदिल हुसैन, ये सोशलॉजी पढ़ाते हैं यहाँ पर, और इन्होंने अपनी मास्टर्स कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप के थ्रू की है, एंड इनका पीएचडी ऑक्सफोर्ड में हुआ है। He has done extensive work on Gujarat riots, and he is very specialized in sociology sector. Yes, you can get on website also, and you can approach us, we will help you. तो आदिल हुसैन सर इन्होंने काफ़ी एक्सटेंसिवली वर्क किया, और ये AMU में भी पढ़े हैं। इनका ग्रेजुएशन एंड AMU से है, इवन एक मास्टर्स भी इन्होंने AMU से किया है। सो यू कैन गो थ्रू हिज profile and you can see how well he has done his work. Umar, please change it. आसिम सिद्दीक सर, अगर आप कुणाल कामरा को फॉलो करते होंगे तो आपने इनका रिसेंट में एक पॉडकास्ट उनके साथ सुना होगा। ये हमें यहाँ पर एथिक्स, एविडेंस पढ़ाते हैं, इलेक्टिव्स लाइक डेमोक्रेसी एंड यूथ पढ़ाते हैं। इन्होंने इनका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग में है, उसके बाद इन्होंने शिफ्ट किया डेवलपमेंट सेक्टर में। तो इनका बहुत एक्सटेंसिव वर्क है ट्राइब्स के साथ, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में। तो सब अपने अपने इसमें स्पेसिफिक एक्सपीरियंस लेके चलते हैं। इन्होंने बहुत आर्टिकल्स भी इनके बहुत पब्लिश होते रहते हैं। उमर चेंज। नीरज हाटेकर सर, ही इज़ वेरी फेमस एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। हमें डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, महाराष्ट्र में बहुत फेमस हैं। इनकी खुद की पॉलिटिकल पार्टी है, मुंबई यूनिवर्सिटी में ये बहुत टाइम तक इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं। और मैंने इनसे पर्सनली पढ़ा है, तो मुझे इनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है। ही यूज एक्सटेंसिव डेटा सेट्स, आपको डेटा के थ्रू बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। अगर हम MSW या BSW करते हैं, मैं ये नहीं कह रही वो चीज़ें अच्छी नहीं है, बट एज़ कम्पेयर टू जब मैं MSW से MA डेवलपमेंट को ऑफ APU के कंपेयर करती हूँ, तो बहुत वास्ट डिफरेंस आता है। मैं बहुत चीज़ें जो मेरी फ्रेंड MSW में नहीं कर पाएंगी, मैं कर पाऊंगी। मुझे डेटा रीड करना आता है, मुझे डेटा को एनालाइज करना आता है, मुझे सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना सिखाते हैं। अभी 3rd सेमेस्टर में दे विल मेक अस लर्न 1 स्किल कोर्स, लाइक मैं R ले सकती हूँ, मैं GIS ले सकती हूँ, मैं स्टेटा पढ़ सकती हूँ। सो यू नो दे कंबाइन लॉट ऑफ डिसिप्लिन्स टुगेदर इन डेवलपमेंट। सो आप इनका देख सकते हैं, इनके बहुत सारे इंटरव्यूज़ हैं, NDTV के साथ भी हैं, और बहुत सारे गुड जर्नलिस्ट के साथ भी हैं। उमर, यू कैन गो अहेड, चेंज। Khalid Ansari. Umar, you want to talk about him? ओके, खालिद अंसारी सर सोशलॉजी पढ़ाते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट सेक्टर में ही। इनका भी बहुत सारा एक्सटेंसिव वर्क रहा है, इवन दो मैं बहुत फेमिलराइज नहीं हूँ, बट मैंने कुछ इनके आर्टिकल्स पढ़े हैं, आप इनको जाके सर्च कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फैकल्टी है, इफ़ यू नीड टू हैव वन टॉप रीज़न के आपको APU क्यों आना चाहिए,
तो मेरा सजेशन है सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी के लिए आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की फैकल्टी बहुत अपने अपने फील्ड्स में बहुत स्पेशलिस्ट रही है, एक्सपर्ट है, प्लस कंटिन्यूस रिगर वर्क है। वो एक डोमेन में टिकते ही नहीं है, उनका इतना कंटिन्यू वर्क रहता है कि आप उनकी डेजिग्नेशंस पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। उमर, इज इट एनीथिंग लेफ्ट इन प्रेजेंटेशन? No, I think let me see. सो बाकी फैकल्टी को ग्राउंड रियलिटीज पता होती हैं। दे आर नॉट जस्ट कहीं से उठ के आ गए हैं, पीएचडी किया है और यहाँ के बैठ गए हैं। उन्होंने ग्राउंड में बहुत एक्सटेंसिव वर्क किया है, तभी वो यहाँ पर है, बी इट इन इकोनॉमिक्स, बी इट इन एजुकेशन सेक्टर, बी इन डेवलपमेंट सेक्टर। बाकी आपकी लर्निंग्स बहुत अच्छी आती हैं, जो आप 1.5 साल में हम लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, उससे जो लर्निंग्स मैंने ली हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अब मैं चीज़ों को क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीके से करती हूँ जो पहले नहीं करती थी। लाइक जो हमारा ग्रेजुएशन तक एक टारगेट रहता है कि एग्जाम्स के लिए पढ़ना है और जो ऑथर ने कहा है वही लिख के आना है, बट यहाँ पर अपोजिट है। आपको ऑथर को क्रिटिसाइज करना होता है, नॉट इन अ वे ऑलवेज नेगेटिव, बट आपको सोचना समझना होता है कि ऑथर भी एक इंसान है, वो जो कह रहा है, वो जो ट्रेजेक्ट्री बता रहा है, वो सही है या गलत है। अगर वो गलत है तो क्यों गलत है, अगर वो सही कह रहा है तो क्यों कह रहा है। सो आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को एनालाइज कर पाता है। फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़ आप देख सकते हैं, एमए इकोनॉमिक्स, पॉलिसी रिसर्च में जा सकते हैं, आप थिंक टैंक्स में हो सकते हैं, आप अपना खुद का थिंक टैंक क्रिएट कर सकते हैं, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, बैंकिंग में, कंसल्टिंग में, पॉलिसी एंड एडवोकेसी में। एमए डेवलपमेंट आप एनजीओ से, इंडिया के बहुत टॉप लेवल एनजीओ जो हैं आप उसमें जा सकते हैं। एफईएस हो गया, आगा खान हो गया, अंतरा हो गया, और भी बहुत सारे हैं, आप उसमें वर्क कर सकते हैं। प्रधान हो गया, यू शुड सर्च अबाउट दीज एनजीओज, तो आपको आइडिया होगा जब एपीयू से कोलैबोरेट कर रहा है तो उसका प्लेसमेंट प्रोसेस भी कैसा होता है। आप खुद के बहुत सारे एलुमनाई यहाँ पर हैं जिन्होंने खुद का सोशल एंटरप्राइज इनिशिएट किया है और बहुत अच्छा कर रहे हैं स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ। आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा एपीक्यू एलुमनाई इन सोशल सेक्टर। गवर्नमेंट में आप जा सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग, एडवोकेसीज में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, WHO, UN, सुनने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन यस यू कैन डू दैट। CSR के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। इवन हमारी जो इंटर्नशिप्स होती हैं वो कुछ CSRs भी इंक्लूड करती हैं। MSc क्लाइमेट चेंज वेरी न्यू है, लेकिन जो इसके करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एनवायरनमेंट कंसल्टिंग हो गया, पॉलिसी डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड मोस्ट ऑफ ऑल एकेडमिक रिसर्च आप एक्सटेंसिवली कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज में कोई एंड नहीं है कि आप रिसर्च का एंड कर सकते हैं। एजुकेशन में यू कैन वर्क एज एजुकेटर, एजुकेशन पॉलिसीज़ पे वर्क कर सकते हैं, स्कूल लीडरशिप्स हैंडल कर सकते हैं, करिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं, बिकॉज आपको इतने अच्छे से सिखाते हैं कि यू ट्राई टू क्वेश्चन द करिकुलम, एग्जिस्टिंग करिकुलम। सो फिर आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं अपना, एड टेक में जा सकते हैं। दीज ऑल आर अपॉर्चुनिटीज़। आगे that's all about from our side. Now we are open to questions. There are some questions. Yes, Umar. Thank you so much, Ms. Kashashifa and Mr. Hello. for talk and for sharing your experience. So, Am I audible? Yes, you are audible, Umar. Hello. Am I audible? Yes, you are. हाँ, तो ज़्यादा देर बोर नहीं करूँगा। अभी 6 मिनट है मेरे पास, तो बस 6 मिनट में ही बताऊँगा। अब मैं कुछ मेरे सीनियर्स और कुछ मेरे क्लासमेट्स हैं, मैं उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल दिखाऊंगा और वो कहाँ प्लेस हैं आप वो देख लीजिए। बस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा सा टाइम लगेगा। इतने देर तक आप बैठे हैं, बहुत शुक्रिया। मीनवाइल मैं जो चैट्स पे क्वेश्चन है मैं उनका आंसर दे देती हूँ। ये देखिए, आप अद्वैत मोहर हैं, अभी PhD कर रहे हैं मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से, और इन्होंने अंडरग्रेड किया है APU से, अंडरग्रेड APU से किया है, उसके बाद मास्टर्स किया है यूनिवर्सिटी ऑफ सेना से, और फिर इसके अलावा इन्होंने कैफराल में काम किया है। कैफराल RBI का ऑर्गेनाइजेशन है। ये अद्वैत मोहर हो गए। दूसरे पे मैं, ये है रविंदर भाई, मेरे जस्ट सीनियर हैं, अभी काम कर रहे हैं NCER में। NCER नीति आयोग का थिंक टैंक है, नीति आयोग के अंडर काम करता है। और फिर उसके बाद हैं
आप लोग इनसे अगर नहीं वाकिफ़ हैं तो वाकिफ़ हो जाइए। आतिफ भाई हैं, फाउंडर हैं एमयू इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स क्लब के। ये आतिफ भाई मेरे गाइड हैं, मेरे गुरु हैं, इन्होंने मुझे गाइड किया है। ये देखिए आप, फाउंडर ऑफ एंड जॉइंट सेक्रेटरी, फील्ड विजिट इनकी रही है। उसके अलावा इन्होंने करेंटली ये काम कर रहे हैं IIM में, और अभी आप कुछ और भी सुनेंगे जो मुझे पता है, मैं शेयर नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आतिफ भाई काफ़ी अच्छा काम है इनका, काफ़ी मतलब डेटा वगैरह में बहुत अच्छा आतिफ भाई का एक्सपर्टीज़ है। तो आतिफ भाई भी जस्ट जैसे ही अंडरग्रेड बोल रहा हूँ, मास्टर्स कंप्लीट हुआ, वैसे ही उनको IIM में आरएशिप मिल गई थी। ये मेरा दोस्त है टिकेश्वर सिंह, मेरे साथ में क्लासमेट है मेरा, अभी हार्वर्ड के प्रोफेसर के अंडर आरएशिप कर रहा है। तो आपको इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स में APU में ऐसा पढ़ाया जाएगा कि आपको हार्वर्ड के भी प्रोफेसर हायर कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी डील नहीं है। अभी मेरा एक दोस्त और है रविशंकर सिंह, वो भी टिकेश के साथ काम कर रहा है हार्वर्ड में। तो काफ़ी अच्छा कोर्स है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये मेरी जस्ट सीनियर है देविका, ये कैफराल में काम कर रही हैं। कैफराल अगेन RBI का ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कुछ मेरे जस्ट सीनियर हैं जो डेवलपमेंट से हैं, जो AMU से हैं। ये वकार भाई हैं, ये AMU से हैं, और इन्होंने जस्ट डेवलपमेंट कंप्लीट किया है। इन्होंने काम किया WWF में, फिर अभी ये काम कर रहे हैं ग्राम विकास में। समर इंटर्न रहे हैं आगा खान फाउंडेशन में, और देखिए आप कितना सारा काम इन्होंने किया है। ज्योग्राफी से किए हैं अपना बैचलर, फिर यहाँ से आके मास्टर्स किए हैं डेवलपमेंट में। वकार भाई हैं ये। फिर ये बरकत भाई हैं, ये भी बरकत भाई का आप लिंक्डइन देखिए, अभी यहाँ पे प्रोग्राम एसोसिएट हैं डेवलपमेंट सपोर्ट सेंटर। इंटर्न रहे हैं आगा खान फाउंडेशन में, लाइब्रेरी असिस्टेंट रहे हैं अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में। फिर बैचलर किया है ज्योग्राफी में AMU से, और फिर भी अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, और मास्टर्स करते ही इनकी जॉब लग गई। मैं इसको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी है, जॉब अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, बेसिक क्लाइमेट चेंज और डेवलपमेंट की कोई भी कोर्स करते हैं, यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू विल गेट द जॉब। थैंक यू फ्रॉम माय साइड। हाँ, थैंक यू। स्पेसिफिकली कोर्स सारे अच्छे हैं, बट आई विल टेल यू टू फोकस ऑन एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज। अदरवाइज आपकी चॉइस है, आपका पर्सनल है, जिसका इंटरेस्ट हो। बाकी मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगी अपनी, हाउ विल यू सी द अप्रोच ऑफ प्रोफेसर्स इन APU एज कम्पेयर टू AMU? सो वेरी डिफरेंट अप्रोच। पहली बात, यहाँ हिरार्की नहीं होती है। प्रोफेसर्स जो AMU में, उनको थोड़ा सा एटीट्यूड लेवल रहता है, यहाँ कुछ नहीं है। आप कितना भी लेम क्वेश्चन उनसे पूछ सकते हैं, वो आपको बहुत पेशेंटली आंसर करते हैं। दे आर लाइक योर फ्रेंड्स। Umar bhai, you can continue. I think she's having some problems. Am I audible? Yes, you are. Please continue. Yes. तो यहाँ प्रोफेसर्स काफ़ी मतलब इतने अप्रोचेबल हैं कि आप उनके ऑफिस में जाएं, कितने भी लेम क्वेश्चंस पूछ लें। लेम क्वेश्चंस मींस अब कुछ कोर्स से ही रिलेटेड लेम क्वेश्चन, अब ये नहीं कि कुछ भी पूछ लिया। तो APU में एक ये है कि प्रोफेसर्स जो कहते हैं कि वी आर लाइक फ्रेंड्स बट वी आर नॉट फ्रेंड्स। तो आपके साथ वो फ्रेंडली रहेंगे, बट वो आपके बिल्कुल फ्रेंड नहीं हो जाएंगे कि ऐसे कि आप उनके कंधे पे हाथ रख सकें। तो इंटरनेट कनेक्शन, कैन वी गेट AMU नेट PYQ एंट्रेंस प्रिपरेशन, हाउ वुड यू सी अप्रोच? हाँ, तो अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ पे प्रोफेसर बहुत अप्रोचेबल हैं, आपको जज नहीं करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। और यहाँ पे कम्प्लीटली डिफरेंट, अगर आप बहुत अलग है यहाँ का सिस्टम। फिर उसके बाद विल दोज ईमेल्स एंड PPT बी सेंट? हाँ, ये शेयर हो जाएगी। वी हैव व्हाट्सएप ग्रुप थ्रू विच वी विल शेयर देम। ठीक है। आर एंट्रेंस एग्जाम हेल्ड ट्वाइस अ ईयर? हाँ, ये ट्वाइस अ ईयर होता है, एंड लास्ट ईयर आई थिंक थ्राइस अ ईयर। सो ट्वाइस अ ईयर इज 100% श्योर। इस फर्स्ट ईयर MA एजुकेशन इज फर्स्ट ईयर 1 year MA एजुकेशन? 1 year MA एजुकेशन आई डोंट नो,
आई थिंक अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो अडॉप्ट करेंगे तो जो जिनका 4 साल का बैचलर है तो उनको 1 साल का एजुकेशन होगा, लेकिन श्योर नहीं हूँ, श्योर सिर्फ एक कोर्स में हूँ, वो है MSc क्लाइमेट चेंज। अदर कोर्सेज में अभी तक तो मैंने किसी स्टूडेंट को नहीं देखा। हाँ भाई पूछो। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे पास इससे पहले कुछ सवालात आए थे तो वो पूछना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओवर टू यू प्लीज। Nawal, are you there? Hello, yes. Please ask the question. Okay, so I would like to ask some questions. There was a question that what to do after BA in economics and which central university is the best for MA economics? Can you repeat? Yes, sure. What to do after BA in economics and which central university is best for MA economics? Oh, okay. तो व्हाट टू डू आफ्टर BA इकोनॉमिक्स। BA इकोनॉमिक्स में आप बहुत अच्छे से कोर्स पढ़िए, अच्छा ग्रेड ले आइए, और उसके अलावा साथ साथ में एंट्रेंस की प्रिपरेशन करते रहिए। अगर आपका मैथ्स क्वांटिटेटिव स्किल्स आपकी अच्छी हैं तो आप IIT JAM IIT गेट की प्रिपरेशन करिए, IITs में जाइए। आपकी अगर मैथ्स और क्वांटिटेटिव स्किल उतनी अच्छी नहीं है तो आप CUET में बहुत अच्छी से प्रिपरेशन करिए, इतनी अच्छी करिए कि आपको DSE JNU में एडमिशन मिल जाए। और अब इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी तरह से इमर्ज कर रही हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अशोका यूनिवर्सिटी हो गई, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, मैं इकोनॉमिक्स में बता रहा हूँ। अशोका यूनिवर्सिटी, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, शिवनादर यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ सब में कहीं ना कहीं फाइनेंशियल असिस्टेंस है। आप विजिट करिए इनको, इनके एंट्रेंस दीजिए और इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को विजिट करिए इनका, और साथ साथ में प्रिपरेशन करते रहिए और अब्रॉड अप्लाई करिए। मैं तो ये भी रिकमेंड करूँगा, अब्रॉड अप्लाई करिए, सर्च करिए, अपने अंडर ग्रेड में जितना एक्सप्लोर कर सकते हैं करते रहिए, और नई जो चीज़ें हैं आप उसको जानिए। आप जानिए कि लिंक्डइन क्या होता है, आप जानिए कि लेटेक क्या होता है, आप जानिए कि ट्रांसक्रिप्ट क्या होती है, आप जानिए कि AMU में मीडियम इंस्ट्रक्शन AMU खुद रिलीज़ करता है, आप उसको लीजिए, उसके थ्रू अब्रॉड अप्लाई करिए। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आप कनेक्ट करिए हम लोगों से, जो भी सीनियर हैं मुझसे कनेक्ट करिए, आतिफ भाई से कनेक्ट करिए, इकोनॉमिक्स क्लब से कनेक्ट करिए। हम लोग उस पर भी बात करेंगे कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं एक अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, so the next question is, what are the most important factors considered during the entrance and interview process for the admission to MA in economics or development education programs at Azim Premji University? कोई स्पेसिफिक फैक्टर कुछ नहीं है। आपका एंट्रेंस क्वालिफाई होगा, फिर उसके बाद आपसे इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू बहुत बहुत कुछ UPSC वाला इंटरव्यू नहीं होता, बहुत रिलैक्सिंग इंटरव्यू होगा। कुछ लोगों का तो ऐसा इंटरव्यू होता है कि उनसे सिलेबस के क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाते, उनसे बस बातचीत करके उनका इंटरव्यू खत्म कर लिया जाता है, उनका सिलेक्शन भी हो जाता है। और कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपसे कह दूँ चला आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन ही ना करें। कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा वो प्रोफेसर पे डिपेंड करता है और आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह चीज़ों को बता रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और अगर आपने CUET की अच्छी प्रिपरेशन की है और आपको चीज़ें आती हैं, आपको मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल बेनिफिट, आपको मार्जिनल रेवेन्यू पता है कैसे कैलकुलेट होता है, आपको स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स पता हैं, एवरेज क्या होता है, मीडियन क्या होता है, नॉर्मल कर्व क्या होता है, डेविएटेड कर्व क्या होता है, फिर डिफरेंशिएशन आपको पता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, फिर आपको यूटिलिटी पता है। अगर बहुत बेसिक चीज़ आपको प्रोडक्शन फंक्शन पता है तो आप कर ले जाएंगे। मींस आप अगर अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को CUET के लिए तो मुझे लगता है आपका इंटरव्यू हो जाए। So the next question is that if the master's is of 2 years, should we opt for 3 years undergraduate or 4 years honors is better?
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि 4 ईयर, अब डिपेंड करता है कि आपके 4 ईयर में क्या ऑफर किया जा रहा है। अगर आपको 4 ईयर में बहुत अच्छा कुछ ऑफर किया जा रहा है जिससे आपको लगता है कि आपकी कैरियर अपॉर्चुनिटी में बेहतर रहेगा तो आप उसको करिए, और इन केस अगर नहीं रह रहा है, आपको लग रहा है तो फालतू है, 1 साल वेस्ट हो जाएगा, तो मत करिए। मतलब ये सब थोड़ी सब्जेक्टिव चीज़ें हैं और आप खुद भी एक्सप्लोर करिए, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा नहीं पता, क्योंकि मेरा तो 3 साल का था, तो 3 साल के बाद चीज़ें ख़त्म हो गई, ऐसा है। Okay. So the next question is undergraduate in political science having minor economics also can apply for the PG in IIT? I'm not sure. You can visit the website. You can visit IIT JAM, IIT Gate website and see the question section. There, people might have asked. Okay. So we have another question that is like want to know about the admission procedure, like selection, entrance and scope, and more opportunities about Azim Premji University, especially in subjects like political science, economics. So, there is no subject as political science in Azim Premji University. So, in masters, undergrad, they have BA political science, but MA political science is not there. And in economics, I have explained. So, entrance, there will be entrance test, there will be interview, there will be some questions you have to write essay. So these are the things, and I'm saying, like, if you are preparing for CUET, then you can qualify the APU entrance exam. And if you are good at mathematics, if you are good at quantitative skills, apply for IITs, ISI, and if someone is from your family is living abroad, Germany, France, UK, US, then try to apply for US, UK, Germany. You have lots of options to apply and utilize AMU resources, be part of Econ Club, join clubs. These things will matter. These things will matter. Even Atif Bhai has mentioned in LinkedIn, even I have mentioned, like, former AESC secretary, and people will see these things. So try to, if your department don't have any club, make a club and try to engage with seniors, conduct sessions, and utilize every hour, every time in doing something. Thank you, Umar. Sorry about my connection. One thing you will really struggle in APU is internet connection. That I can say. This is the very negative side of APU. Okay, I'll take the question. APU focuses on qualitative or quantitative economics. क्वेश्चंस ले लिए ऑलमोस्ट मैंने, तुम जब तक नहीं आई थी। ये वाला ले लिया है उमर, because I got to know this question. नहीं, ठीक है, कंटिन्यू। Okay. If anyone have question, then you can ask. There's one more question that like, is there any placement opportunities after pursuing Master in Economics from Azim Premji University? हेलो, मैं इसका रिस्पॉन्स दूंगा। भाई, अब आप सेशन अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्या? मैं अभी बहुत सारे, अब बुरा मत मानना, अभी बहुत सारे लोगों का मैंने प्रोफाइल दिखाया लिंक्डइन पर, सब जस्ट पास आउट थे ऑलमोस्ट। आतिफ भाई हो गए, रविंदर भाई हो गए, देविका हो गई, शौमदीप भाई हो गए, ये सारे लोग जस्ट पास आउट हैं। दे आर वर्किंग इन IIM, NCEAR, दे आर वर्किंग इन CAFRAL, दे आर प्लेस्ड in good organization. So placement is good at Azim Premji University. Till now, they have placed almost 90% of their students. Okay, I think that was all with the questions. And with that, we come to an end of today's session. It has been...
Newal, can you please hold on a minute? We have some questions pending. I would like you to address those first in the chat. Can you please see them in the chat? If second year should be of 3-year undergrad course, APU focus on qualitative and quantitative. APU focuses on both things. APU has electives in such a way that if you are a quantitative person, you can opt quantitative courses. If you are a qualitative person, you can opt qualitative courses. In first year and second year, they have standard courses in which you will be taught both the subject. Like econometrics is compulsory, statistics is compulsory, communicating economics is compulsory, political economy is compulsory. So these courses are compulsory courses. Then after you can opt as per your interest. 1 year MA economics, I'm not sure. Then if the mark The question is like if the master is of 2 years, should we opt for 3-year undergraduate or 4-year honors is better? In my opinion, 3-year undergraduate is better because there is no good way to have extra 1 year academics in graduation, because 2-year master here will teach you a lot that you won't be able to be there in 1 year. So you should opt for 3-year undergrad degree. That's the question. I think the last question I have responded. Yeah, I think we're almost done with all the questions. And I think thank you so much, everyone. Or if you have any queries, you can just contact us through AESC and we will love to help you. Sure. Yes, okay. So with that, we come to the end of today's session. It has been truly insightful to hear from both Umar Bhai and Kashifa P. Their journeys remind us that with the right guidance and determination, we too can make two-way prestigious institution like Azim Premji University. And I now invite Ms. Zikra Khan to deliver the vote of thanks and formally close the session. Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I am Zikra, the Joint Secretary of AMU Economic Student Club, and it is my privilege to extend a heartfelt gratitude to our former Joint Secretary, Mr. Umar Bhai, and the former member of ASC, Ms. Kashifa Irfan, whose presence today remind us of the contribution they made in this club during their time. And currently pursuing their master degree from Azim Premji University. Thank you so much for sharing your experiences and guidance for the entrance program, Gateway to Azim Premji University, in the field of economics, development, education, and climate change. Thank you so much, Bhai, for sharing your experiences. We are so grateful for your time, encouragement, and the continued connection with this club. Thank you so much for having. Thank you so much. We truly respect that you come here, and thank you so much for inspiring us through your journey from ASC to APU. Thank you. Thank you. इतना मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का अदा करना चाहूँगा. बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पहले वेलकम किया, फिर उसके बाद इतना लंबा वोट ऑफ थैंक्स किया. मतलब ये कर किया आप लोगों ने, अच्छा किया. नहीं भी करते तब भी कोई दिक्कत नहीं थी. और बाकी मैं हमेशा जब आप बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है. नहीं बुलाएंगे तब भी आ जाऊंगा. मैं देखता रहता हूँ, मैं ग्रुप्स में हूँ, मैं काम वाम आप लोगों का देखता रहता हूँ, क्या चल रहा है क्लब में. लिंक्डइन वगैरह पे भी देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहे हैं. तो बढ़िया है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह. I just have a very small question. During your time, how will you manage the events and the club? Just मेरे टाइम पे बहुत, तुम लोग बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो. मेरे टाइम पे हुए थे सेशंस, तो जो भी मेंबर्स थे मेरे साथ के जो भी लोग थे वो बहुत अच्छे से मेरी हेल्प करते थे. जैसे काशिफा डिज़ाइनर थी क्लब की, तो पोस्टर वगैरह काशिफा डिज़ाइन करती थी. और भी जो सोशल मीडिया टीम थी और भी जो अलग अलग टीम्स थी, वो सब
काम हम लोग मिलके करते थे और सबके कंट्रीब्यूशन से ही कुछ काम हो पाता था, वरना किसी एक बंदे का काम किसी एक का नहीं है। और सबसे मेन ये है कि कोई हायरार्की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पोजीशन आपने जॉइंट सेक्रेटरी बना दी, लेकिन आप जॉइंट सेक्रेटरी साहब एकदम अपने आप को वो बना लेंगे कि अरे मैं तो जॉइंट सेक्रेटरी बन गया, तो फिर क्लैश हो जाएंगे। तो इसलिए बहुत मिलजुल के काम करना है। Thank you so much, bye. एंड एडिंग टू व्हाट उमर सेड, हम लोग कोविड बैच थे तो हमारा सब ऑनलाइन था, इवन कॉन्फ्लिक्ट्स भी। आप लोगों का ऑफलाइन होगा, सी कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, देयर इज नो वे कि इंसान साथ में वर्क करें और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। हम अपनी अपनी पर्सनैलिटी रखते हैं, अपने अपने व्यूज रखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको सॉल्व कैसे कर रहे हैं। आप दिल में कॉन्फ्लिक्ट जब खत्म हो जाए, सॉल्व हो जाए, दिल में कुछ ना रखें, उस इंसिडेंट को भूल जाएं और ग्रुप का मेन मोटिव जो है उसको अपनी अंदर जो मतलब चीजें हैं या अपने जो पर्सनल वैल्यूज या बाउंड्रीज हैं उनसे ऊपर रखें, क्योंकि आपने ग्रुप आपके लिए नहीं ज्वाइन किया, ग्रुप के लिए ज्वाइन किया है। AESC खुद में एक आइडेंटिटी है जिसको आपको अपनी आइडेंटिटी से ऊपर रख के वर्क करना पड़ेगा, तभी आप उस ग्रुप को कुछ दे पाएंगे। अगर आप अपना ऊपर रखेंगे पर्सनल, तो आई एम सॉरी, आपको ग्रुप लीव करना ज्यादा बेहतर रहेगा। That's all. कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, देयर इज नो वे कि कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, नो प्रॉब्लम, आप उनसे नहीं बच सकते, लेकिन यू नीड टू have a ability to solve it in a better way, because पूरी लाइफ यही करना है, be it in career, be it in personal relationships. Okay? Excuse me, I have to say some things. Actually, जब बात हो रही थी जिक्रा के साथ, so I am the joint secretary of this club, so तो मुझे लगा मुझे आना चाहिए। So we are I think फैजान मुझे लगता है कि अब ये जो बातें हैं ये पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग मिलकर बात करेंगे किसी दिन, ठीक है? ये सब पे बाद में सारिम के साथ बात होगी, तुम लोग भी रहना, फिर इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। आप लोग एक बार अलीगढ़ आए क्लब के हाँ लिए। इंशाल्लाह अलीगढ़ आए, मिलेंगे। और टिकट विकेट आप लोग करवाइए मेरा, मैं आता हूँ इंशाल्लाह। I think we should talk about it in the हाँ नेक्स्ट सेशन में इनफॉर्मल मीटिंग में करते हैं हम लोग। Yes, we should talk. And you guys are really doing fantastic job. Very good. Thank you. ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। Bye. Allah Hafiz to everyone who has joined us. Thank you so much. Allah Hafiz.